Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session on 20 GK question which have been specifically curated from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. So let's look at the question for today, but again the same advice that please go through today's news analysis video before you attempt this 20 GK question, because all of these questions have been from that 20 GK questions only. Okay, so first question is, which of the following body is responsible for appointment of important functionaries in the national security related offices or apparatus of India? So which is the body or which particular committee or council is responsible for appointment of important functionaries which are related to national security or which are responsible for securing the national boundaries? So is it the president, is it the defense acquisition council, is it a national security council, or is it cabinet committee on security? So the answer first is D, cabinet committee on security, because it is the cabinet committee which is responsible for appointment of important officers of national securities as well as it is the committee which is responsible for discussing important national security matters also. Okay, next पे आते हैं, which of the state is not a border state of Bangladesh? So this was another question which we discussed today. So Assam, Tripura, Meghalaya, Manipur are mentioned. So Manipur is one of those northern states which does not share a border with Bangladesh. Bangladesh state near to Bangladesh. All of these are important facts. That's why I have incorporated this question. So Assam, Tripura, Meghalaya are the three states which have a border from the northeast. West Bengal is one state from the west of the Bangladesh which share a border, but Manipur is not one of them. And the fourth state which shares a border with Bangladesh which is not mentioned here is Mizoram. Okay, next, what is the primary criteria for a company to be classified as a unicorn? So किसी कंपनी को अगर हमें unicorn classify करना है, so what criteria is the most appropriate criteria, and the best criteria which has been used to classify a company as a unicorn is the B option, which is a privately held startup valued at $1 billion or more. So अगर कोई startup की value 1 billion या उससे ज़्यादा होती है तो हम उसे एक particular unicorn की category में put up करते हैं. नेक्स्ट पे आते हैं, विच इज द फर्स्ट सोलर विलेज ऑफ इंडिया? इंडिया का पहला सोलर विलेज किसको डिक्लेयर करा गया है? सो मोधेरा, जो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट आपके गुजरात में है, दैट हैज बीन द फर्स्ट सोलर विलेज ऑफ इंडिया सिंस 2022. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया? सो अगेन चार ही ऑप्शन है, सो दैट यू गेट कंफ्यूज अमंग द ऑप्शंस, बट द करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट सोलर सिटी इज द सिटी ऑफ सांची, विच इज अ सिटी इन एमपी एंड विच हैज बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया. नेक्स्ट पे आते हैं, जेंडर बजटिंग इन इंडिया वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन बजट इन विच पर्टिकुलर ईयर्स बजट? सो जेंडर बजटिंग को हमने कब से इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट किया है? सो जेंडर बजटिंग इज पार्ट ऑफ योर इंडियन बजट एनालिसिस सिंस 2005-6. सो 2005 और 6 का जो फाइनेंशियल बजट था उसमें हमने फर्स्ट टाइम जेंडर बजटिंग को इंक्लूड करा था, तो 6 का आंसर हो जाएगा ए. ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन विच ईयर बाय द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट? सो बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि पार्लियामेंट ने 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट कब पास करे थे? सो ये जो दोनों एक्ट्स है ये आपके पास हुए थे इन द ईयर 1992 और इनको हमने इन्फोर्समेंट इनका स्टार्ट किया था 1993 के अंदर में. सो रिमेंबर दिस कि 7th का आंसर सी है, ना कि डी. 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इनेक्ट कब किया गया था? सो आंसर होगा उसका 1992. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट पे मूव करते हैं, which organization is responsible for the procurement and storage of food grains at the national level under the PDS? So public distribution system के अंदर में कौन सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो procurement और storage के लिए responsible है for the grains which have been taken for the PDS system? So जो ऑर्गेनाइजेशन responsible है वो है आपकी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और ऑल्सो नोन एज FCI, जिनके गोडाउन्स में आप अपने जो प्रकर्ड गुड्स होते हैं या आपके जो ग्रेन्स होते हैं उनको कीप अप किया जाता है और लेटर ऑन उनको स्टेट्स को ट्रांसफर किया जाता है सो दैट उसको वो लोकली डिस्ट्रीब्यूट कर सके. सो 8th का आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट पे मूव करते हैं, व्हाट इज द एंटाइटलमेंट फॉर हाउस होल्ड्स विद एन अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड अंडर द पीडीएस? सो AAY या अंत्योदय अन्न योजना की राशन कार्ड जिन लोगों के पास होते हैं उनको क्या एंटाइटलमेंट मिलता है अंडर द पीडीएस? सो वी हैव डिस्कस दिस आल्सो. उनको 35 kg ऑफ ग्रेन्स पर फैमिली पर मंथ. तो ग्रेन्स का मतलब यहां पे राइस या वीट्स है. 35 kg राइस या वीट दोनों में से वो चाहे कुछ भी हर फैमिली एक महीने के लिए ले सकती है. तो 9th का आंसर होगा डी.
नेक्स्ट पे आते हैं, विच आर द फॉलोइंग कंट्री इज होस्टिंग द एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग ऑफ 2024. सो रिमेंबर दिस इज नॉट द एससीओ समिट जो कोई और कंट्री ने होस्ट करी थी, और यहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की एक मीटिंग होती है जो बेसिकली इस बार अभी आपकी उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को इन्विटेशन है, दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज, और वो पर्टिकुलर मीटिंग होस्ट करी जा रही है बाय द कंट्री ऑफ पाकिस्तान. सो लेट्स सी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर आपके वहां पे जाते हैं नहीं जाते, बट इट इज नॉट द एससीओ समिट, इट इज अ एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है. सो 10th का आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट मेंबर टू जॉइन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 2024. सो रिसेंटली 10th मेंबर ऐड हुआ है आपका एससीओ के अंदर में, एंड दैट कंट्री इज बेलारूस. आपकी 7th, 8th और 9th कंट्री यहां पे मेंशन है मेंबर कंट्रीज, और 10th लेटेस्ट मेंबर एंट्रेंट टू एससीओ इज बेलारूस. नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द शी बॉक्स पोर्टल ऑल्सो नोन एज सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स पोर्टल लॉन्च बाय द एमसीडी. तो कई बार अगर आपको किसी चीज का फुल फॉर्म भी पता होता है तो भी इजीली हो जाता है. सो इफ यू नो द फुल फॉर्म, यू नो कि ये पर्टिकुलरली एक ऑनलाइन पोर्टल है फॉर कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट. सो बिकॉज ऑफ दिस 12th का आंसर होगा बी, टू रिपोर्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली. नेक्स्ट में आते हैं, इन विच ईयर वॉज द शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ WCD. सो ये जो पर्टिकुलर पोर्टल है, कई जगह पे न्यूज़पेपर ने गलत रिपोर्टेड है कि 24 में हमने नया पोर्टल लॉन्च करा है, बट इन एक्चुअलिटी ये जो पोर्टल है ये 2017 में लॉन्च हो गया था, और अभी हमने इसको एक सेंट्रलाइज पोर्टल में कन्वर्ट करा है. सो करेक्ट आंसर जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का है वो है ए, 2017. नेक्स्ट पे मूव करते हैं, अंडर विच एक्ट आर विमेन प्रोटेक्टेड एट वर्क प्लेसेज वेदर इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर और ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर. सो हर किसी जगह पे विमेन को वर्क प्लेस पे प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कौन सा एक्ट करा है. सो वो जो पर्टिकुलर एक्ट है वो हम 2013 में लाए थे, जिसका नाम है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, प्रिवेंशन रिहेबिलिटेशन एक्सेट्रा करके एक्ट है फुल नेम तो, बट शॉर्ट में हम उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट भी बोलते हैं. सो उसका 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी. नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज अमंग्स द फॉरेन यूनिवर्सिटीज सेटअप इन इंडिया. सो इन 4 यूनिवर्सिटी जो ऑस्ट्रेलियन की फेमस यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी जिसने इंडिया में अपना ऑफिस या अपना ओवरसीज कैंपस स्टैब्लिश करा है. सो वो जो यूनिवर्सिटी उसका नाम है डीकिन यूनिवर्सिटी, विच इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी, विच इज द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी टू स्टैब्लिश एन आउटसाइड कैंपस इनसाइड इंडिया ऑल्सो, और उसका नाम है डीकिन यूनिवर्सिटी. सो 15th का आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट पे आते हैं, विच इंडियन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड अ कैंपस इन आबू धाबी. सो आबू धाबी के अंदर में किस पर्टिकुलर इंडियन इंस्टीट्यूट ने यानी यूनिवर्सिटी ने अपना ओवरसीज कैंपस ओपन करा है. सो इट इज IIT दिल्ली जिसने आबू धाबी में अपना एक ओवरसीज कैंपस रन करा है. सो 16th का आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि IIT मद्रास ने अपना कैंपस किस पर्टिकुलर इंटरनेशनल लोकेशन में एस्टेब्लिश करा है, दुबई, लंदन, ज़ांज़ीबार या सिंगापुर. तो ज़ांज़ीबार जो एक अफ्रीकन कंट्री है जिसके अंदर में IIT मद्रास ने अपना ओवरसीज कैंपस को एस्टेब्लिश करा है. नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेन यूनिवर्सिटी करंटली सेटअप इन इंडिया. सो इन 4 में से 3 यूनिवर्सिटीज अपने इंडिया के अंदर में अपना एक कैंपस ओवरसीज कैंपस स्टैब्लिश करेंगी, बट वन ऑफ दिस हैज नॉट येट डिसाइडेड टू स्टैब्लिश अ फॉरेन कैंपस इन इंडिया. सो जो 3 आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में कैंपस स्टैब्लिश कर रहे हैं वो है A, B और C, यानी डीकिन यूनिवर्सिटी विच इज एन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग जो आपकी अगेन एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है, और दोनों की दोनों गिफ्ट सिटी गांधीनगर में अपना ऑफिस स्टैब्लिश अपना ओवरसीज कैंपस स्टैब्लिश कर चुके हैं. और थर्ड यूनिवर्सिटी जो इंडिया में जो टॉप 100 की एक यूनिवर्सिटी है जो इंडिया में अपना ऑफिस या ओवरसीज कैंपस स्टैब्लिश करेगा वो है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन. दिल्ली NCR के रीजन में प्रोबेबली नोएडा के अंदर में अपना कैंपस स्टैब्लिश करेंगे, और वेरी सून वी वुड आल्सो बी हैविंग अ फॉरेन यूनिवर्सिटी विच इज वन ऑफ द टॉप 100 यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो इंडिया में अपना कैंपस रन करेंगे. Unfortunately, as of now, Harvard University has not decided to set up a campus, but very soon we believe कि Harvard University भी शायद इंडिया में अपना कैंपस स्टैब्लिश करे. सो 18 का आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ टेलीग्राम. सो 4 नाम आपके सामने हैं, बट पेविल डूरोव इज द पर्सन जिनको भी फ्रेंच अथॉरिटीज ने अरेस्ट करा है बिकॉज देयर आर एलिगेशंस की टेलीग्राम ऐप की बिकॉज सिक्योरिटी आई वुड से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, या आई वुड से कि वीक है, कि गवर्नमेंट समहाउ जो कल्प्रिट्स होते हैं जो मिसयूज करते हैं या इलीगल एक्टिविटीज करते हैं उनको कैचअप नहीं कर पाती अगर वो टेलीग्राम यूज करते हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस उनके अगेंस्ट में फ्रेंच अथॉरिटीज एक्शन ले रही हैं. सो सिंपली द क्वेश्चन वाज हु इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ टेलीग्राम. सो आंसर इज पेविल डूरोव.
लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं. कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवोर्सेस बिल 2024 which mandates the registration of Muslim marriages and divorces was recently introduced in which particular state. किस particular state के अंदर में ये particular bill को इंट्रोड्यूस करा गया है. सो वो जो स्टेट है जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया है वो है स्टेट ऑफ असम. सो 20th का आंसर हो जाएगा आपका सी. Okay, so student, these were the 20 GK questions for today, and I hope if you have gone through today's daily news analysis, these questions would have been very easy for you to attempt. Okay, so always go through the daily news analysis first and then try to attempt this 20 GK question. Okay, so that's it from my side for today. Tomorrow I'll again come up with a new set of 20 GK question and we'll try to find out the answer for those also. Okay, so thank you and have a very nice day from my side.